as you have applied potential ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ force ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ electrons ਤੇ flow ਬਣ ਜਾਂਦਾ there is a flow of electrons is called current ठीक है motion of electron ਨਾਲ current ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ flow of electron ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ let n be number of electrons per unit volume ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਆ n is equal to total volume into n ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ मूव कराने ਲਈ सर्कुलेट कराने ਲਈ ठीक है करंट ਦੀ डायरेक्शन याद रखनी है इलेक्ट्रॉन इधर ਨੂੰ फ्लो करता दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ये करंट फ्लो कर रहा है ठीक है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आ एक्सेलरेशन ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ वेलोसिटीज ਕੱਲੇ इलेक्ट्रॉन ਦੀ वेलोसिटी ਕੱਢੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ एवरेज वेलोसिटी ਪੜ੍ਹੀ एवरेज वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ इट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम आया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ QE/m ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SL ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SL ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜੋਗੇ that you will get this question that what will happen to the drift velocities voltage is halved voltage is doubled ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਰਨ these all formulae ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 30 मार्क्स का टेस्ट होएगा ओवरऑल सारे मतलब करना पूरा सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना इस टेस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ CBSE बेस्ड ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਟੈਸਟ ਓਕੇ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा आंदा पेपर दे विच रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये फार्मूला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद भी कराया सी I is equal to NEABD ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ टाइम ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये है एवरेज डिस्टेंस ये है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब एवरेज है तो ये करंट अपने को इस तरह नाल रिलेशन आ गया कल मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछा सीगा सारे बच्चों को कि थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर कट के लेके आयो ते थर्मल स्पीड ऑफ एटम इन अ कंडक्टर ते थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कट के ले आओ ये दो क्वेश्चंस मैं थोड़ा कल दिते सी आई होप तुसी कर ले होंगे आप थोड़ी देर च इन्हां नूं डिस्कस करते हैं देखो बेटा हुण जेड़ा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है ते नेक्स्ट टॉपिक जेड़ा आपां हुण करन जा रहे हां ओह की है वो किस तरह नाल आपां करना है उसते ध्यान देना सारे जेड़ा मैं शुरुआत च तुहानूं टॉपिक लिखवाया सी रिलेशन मतलब ओहम्स लॉ डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ ओह आपां स्टार्ट करन चले हां हुण डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ बेसिकली ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਡਿਡਿਊਸ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ देखो बेटा करंट का फॉर्मूला करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विचकार रिलेशन सीगा NEABD ठीक है जी एंड BD का सानू पता है BD इज इक्वल टू हुणी पढ़ के हटे A इंटू टाउ A की वैल्यू है QE/m इंटू टाउ ते QE/m इंटू टाउ नूं असीं लिख सकते हैं QV/L टाउ ओवर m बिकॉज E is V/L so ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला QV tau by
m into l ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। this take this equation as 1, take this equation as 2, putting 2 in 1, you will get current is equal to, देखो मैं वोल्टेज ਤੇ करंट ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ V = IR ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਓਮਸ ਲਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ L ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है, L आ रहा है, देखते हैं A कितों आएगा, A भी आएगा, एरिया आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, वो जड़ा रेजिस्टेंस R = रो L by A है, वो इत्थों बनया सीगा, तो हौली हौली समझ आएगा। So current I will be equal to NEA VD. So NEA, I'm putting the value of VD. VD is Q V tau over ML. तो बहुत इजी है, कुछ नहीं आएगा, वोल्टेज आप एक साइड रख लांगे बेटा, बाकी सारा सामान दूसरी साइड चक के ले जाने आ जेड़ा Q है बेटा इनू E कह देना तुसी, मतलब इस चीज नु ड्रिफ्ट वेलोसिटी नु हुन कह देना EV tau over ml, ये करना क्योंकि चार्ज जेड़ा हैगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन दे ऊपर चार्ज है, तो Q = E है, तो ਇੱਥੇ ही E m over tau EV tau over ml इस तरह नाल तुसी कर लेना। तो ये जेड़ा रिलेशन है अपने कोले आ जाएगा NEA, ਹੁਣ ਜੇ ਉਰੇ E ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ E ਕਰਦਾ, E ਇੱਥੇ ਹੈ, E ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ E ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, Q ਹੋ ਗਿਆ, Q ਤੇ E ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, A ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਓ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਓਵਰ ML ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, NE × E E², A ਟਾਓ ML ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ V = ਆ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ML ਓਵਰ NE² tau, A भी नीचे लिख लिया, into I, I इधरली साइड I सीगा, V एक साइड रख लिया, ML ऊपर ले गए, NE² tau A नीचे ले गए, L इधर रख लिया। तो ये जेड़ा फैक्टर है बेटा, ये रेजिस्टेंस है, सो रेजिस्टेंस लेट R = ML over NE² tau into A, ये R रेजिस्टेंस आ गई साडे कोल, so we get therefore V = IR दा रिलेशन असी बना लिया। मतलब इस एक्सप्रेशन तो बाद ये एक्सप्रेशन आ गया, बिकॉज करके तुसी ये कर देना, बिकॉज R = this, but we know R = रो L by A, this is also we know, therefore रो भी निकल आई, रो is M over NE² tau, रो का भी फॉर्मूला बन गया, रो रेजिस्टिविटी भी तुसी कट ली, M over NE² tau, इनू हुन आपां ने पढ़ना है बेटा। What is M? M is mass of electron, this is mass of electron. What is N? N are number of electron per unit volume, E², E is electronic charge, tau is tau, relaxation। मैं तुहानू एक खास गल दसना चाहना, मन्नू एक बच्चे ने सवाल पूछा सीगा, ठीक है, वो लड़का न्यूजन कंपनी च काम कर रहा है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है लड़का, उन्हें मैंने एक सवाल पूछा सी, कहना सर ये जेड़ा N है ते जेड़ा ये टाउ है, ये एक दूजे नू जिवें तुहानू पढ़ा रहा है उस उन्होंने भी पढ़ा रहा सीगा, उहदे दिमाग 'च सवाल आया, थोड़े मैं थोड़ी वेट करदा, थोड़ी जी तुहानू दसदा, शायद थोड़े चों कोई बच्चा मैंने सवाल पूछ लिया, मैं तुहानू दसदा नहीं, चलो 1 मिनट 2 मिनट तुहानू होर दे देना। क्वेश्चन ये है बेटा कि रो = ME over NE² tau, साडे कोल फॉर्मूला बन गया, देन रेजिस्टिविटी दा, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हुण जे मैं तुहानू याद करावां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, थोड़ा अगले पेज पे करते हैं आपां। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केड़ी चीज पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, फर्स्ट is temperature, second is nature of material. Nature of material means if you have copper, you have aluminium, basically this is a resistance, this is equal to resistance of the material whose length is 1 meter and whose area is 1 meter square, a resistivity hundi hai basically, but resistivity depends on nature of material। nature of material ਦਾ मतलब एक्चुअली ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करता है। देखो एल्यूमीनियम की गल करिए ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਆਇਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ E ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ n ਹੈ ਜਿਹੜਾ, n ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਟਾਓ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਲੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਲੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਲੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਲੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਫ੍ਰੀਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਓ ਹੈ ਟਾਓ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ, E n ਤੇ ਟਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ n ਤੇ ਟਾਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर मेरी बात करा दो 1 मिनट अगर है यहाँ पे कोई। हाँ जी, एनीवन एनी क्वेश्चन इन ऑन दिस पेज बेटा? कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो या कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको पेपर में आएगी और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसको ढंग से कर लो। तो ये काफी दूर से शुरू हुई थी डेरिवेशन, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, और यहाँ जाके ये खत्म हो रही है। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक मैं छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको बताता हूँ। ये आप नोट कर लो, नोट करा करो, साथ साथ लिख लिया करो चीजों को। चीजें लिख के समझ आ जाती हैं, लिखने से ही याद होता है। 1 मिनट रुको, तुम्हें एक बात बतानी है और ये रही बात, ये बताता हूँ। देखो मैंने एक आपको ना पीछे थोड़े दिन पहले एक मैंने डेरिवेशन आपको कराई थी, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओह्म्स लॉ। आई होप आप सबको याद हो वो डेरिवेशन, है ना? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ मैंने आपको कराया था बेटा। वही डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओह्म्स लॉ आपको इस तरह से भी आ सकती है। 1 मिनट में बताता हूँ इस तरह से।
हाँ जी देखो बेटा, हाँ जी सबको दिख रहा, आई होप सबको दिख रहा हो। ये है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। तो ये क्या है बेटा, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है, आपने ये कर रखा है वैसे तो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई है ये क्या चीज है सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है ये। देखो चार्ज की वैल्यू माइनस ई होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्यू ई टाउ बाय एम होती है, तो इन्होंने क्यू की वैल्यू को माइनस ई पुट कर दिया। तो J की वैल्यू क्या होती है, J इज एन क्यू वी डी। ये कैसे आया एन क्यू वी डी, ये देखो आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, है ना। तो इस A में नीचे ले आया, I बाय A को क्या कहते हो आप, J कहते हो। तो एन ई वी डी, और वीडी की वैल्यू इन्होंने पुट कर दी है, वीडी की वैल्यू अच्छा जे, देखो जे की वैल्यू क्या आ गई, एन ई वीडी, ई की वैल्यू इन्होंने क्यू रखी हुई है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एन क्यू ए वीडी होती है करंट, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डिवाइड बाय एरिया। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन को एरिया से डिवाइड किया हुआ, ये भी आपने याद रखनी है। एन को इन्होंने एन ही रख लिया, क्यू को इन्होंने माइनस ई पुट कर दिया, और बी डी की वैल्यू इन्होंने पहले निकाली हुई है, तो ये बन गया सारा। और इस फॉर्मूले को, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसको 1 बाय सिग्मा कह दिया, क्योंकि ये सिग्मा है, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ अभी आपने किया है, और 1 ओवर सिग्मा, 1 ओवर रो, सॉरी 1 ओवर रो क्या नहीं, 1 ओवर सिग्मा, सिग्मा 1 ओवर रो, रो को हम सिग्मा बोलते हैं, 1 ओवर रो को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं, आधा न। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। ये इस तरह से भी आपको ड्राइव करना आ सकता है, ये एक्चुअली वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बनती है। ये देखो नीचे हमने भी किया था और ये भी है। तो प्यारे बच्चों ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ जाता है। जैसे आपने पहले किया था उस तरह से मैं नहीं करवा सकती, इस तरह से तब नहीं करवा सकता था क्योंकि ये वाले रिलेशन हमने तब नहीं करे थे। ये 1 ओवर रो, 1 ओवर सिग्मा किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते थे तब। आई होप आप सबको मेरी बात बेटा समझ आ गई होगी। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि ये आपको याद रहे। ये वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद भी करना है साथ में, ठीक है बेटा। यहाँ तक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर वो पुराने वाला मेथड भी ठीक है कि वो नहीं दिख सकता उस क्वेश्चन में? वो भी ठीक है बेटा, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई, ये थोड़ा देख इसमें थोड़े वेक्टर वुक्टर से लगाए हुए हैं ना। हाँ जी सर, है ना, तो ये थोड़ा मतलब बच्चे ये भी करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये भी करते हैं बच्चे। एक यहाँ पे ना इन्होंने मतलब एक्चुअल में ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना J, आपको मैं बताता हूँ, देखो ये इस इधर बात कर रहा हूँ, ये J है और ये NEVD है। एक्चुअल में जो करंट डेंसिटी होती है ना उसका जो डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। मतलब देखो अगर करंट इस तरफ चला है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चला है, अब करंट तो इधर चला है और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इधर चली है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली ये जो J है ना, J है, और जो ये VD है, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में इनको लिख रहे हो ना, मतलब हम जब MSc या बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये माइनस ई वगैरह पुट करके ये इनको प्लस साइन में कन्वर्ट कर दिया। ये महान लोग हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं। तो बेटा ये ऐसे एक्चुअली यहाँ क्यू स्क्वायर होता है, माइनस ई पुट करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा। ये क्यू स्क्वायर है, इसमें माइनस ई पुट करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा एक्चुअल में। ये अपनी मर्जी से इन्होंने यहाँ थोड़ा ड्रामा सा कर दिया, यहाँ माइनस ई पुट करके, ऐसे नहीं होता। वैसे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम यहाँ माइनस ई नहीं लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के साथ ये वैसे ये बता रही है
देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर को मूव करेगा, तो वैसे तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जा रही है। एक्चुअल में ये जो आप ये वाली इक्वेशन में माइनस साइन पढ़ रहे हो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तुम्हारी वीडी। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ से देने का ना कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने दे दिया तो क्या कर सकते हैं, ऐसा लरोड़ा है ये, कुछ नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा आप में से कि रेजिस्टेंस क्यों आ रही है कंडक्टर में? कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों आती है? कौन सा बच्चा एक्सप्लेन करेगा मेरे को? जब इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ सरफेस के साथ टकराते हैं वायर की, तो रेजिस्टेंस आती है। किसके? वायर की जो सरफेस है उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है। वायर की सरफेस के साथ आते हैं? वायर के साथ जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो वायर के अंदर होते हैं बेटा, वायर के साथ क्यों अंदर टकराएंगे? आपस वायर में के टकराते हैं अंदर तो मैं समझा भी। तेरे को कहना चाहिए सर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब चलते हैं, जैसे तुम लोगों को मैं एक लाइन में खड़े करके कहूँ भागो, कट्ठे भागो, बस लाइन में रहना है, तो टकराओगे कि नहीं टकराओगे आपस में? बजते बजते यस जाओगे ना। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपस में बज रहे हैं। हाँ भी विपुल बताओ बताओ। सर जो मेटल आयंस है उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो उनको अपोज कर रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है क्या क्या क्या? सर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज करेगा, तो उसे इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस। न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, आ जा मेरे पास। सर जाते हुए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कंडक्टर में कैसे मूव करता है। ये जो तुम थ्योरी बता रहे हो ना केमिस्ट्री वाली, मेटालिक थ्योरी, ये थोड़ी सी जाली थ्योरी है। ये देखो, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे पास एटम है, ये एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन है। एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में एटम बहुत क्लोजली पैक होते हैं। ये तुम्हारा आउटर इलेक्ट्रॉन है जो फ्री सा होता है, जो ऑलमोस्ट फ्री होता है। इतना फ्री नहीं होता है कंडक्टर से बाहर आ जाए, कंडक्टर के अंदर ही मूव करता है। तो ये आउटर टू आउटर न्यूक्लियस मूव करता है बेसिकली, एक एटम से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे में चौथे। यहाँ कई बार क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है, तो निकल गया तो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है बीच कहीं। लेकिन अगर तुम कंडक्टर में यहाँ से इधर नेगेटिव चार्ज लगा दोगे, इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, तो ये इसके डायरेक्शन एक जैसा ही होगा। दे आर फ्री टू मूव बिकॉज दे कैन फ्रीली मूव फ्रॉम एटम टू एटम, एटम टू एटम। एक्चुअली ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्री। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो यार टकराएंगे रुकेंगे, टकराएंगे रुकेंगे। जो टकराना और रुकना है उनका ना बेटा, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है सर्किट में। और ये बहुत थोड़ी होती है मेटल्स में, ज्यादा नहीं होती। मेटल्स में तो आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट मेटल्स की रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का। तो आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस है मेटल्स की, वेरी लेस। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक मिनट। मेटल की तो रेजिस्टेंस बहुत ही थोड़ी है। एक मिनट, ये देखो, एक मिनट दिखाता हूँ।
मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा थोड़ी है, थोड़ी भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा थोड़ी है मतलब। एक मिनट बेटा बस, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखो, ये देखो सिल्वर है, जो सिल्वर की रेजिस्टेंस देखो कितनी कम है। देखो सिल्वर की 1.6 10⁻⁻8, मतलब बहुत कम है। देखो सबकी रेजिस्टेंस -8 के आसपास है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लैटिनम, मरकरी, निकल, मैंगनी। ये एक मेरी बात और याद रख लो, ये ना थोड़ा सा देख लिया कि कॉपर की ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, एल्यूमिनियम की ज्यादा, ये थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। नाइक्रोम एलॉय जो होता है ये मैग्निन जो एलॉय है ये किस किस से बना होता है? कॉपर से, निकल से, आयरन से, मैंगनीज से। नाइक्रोम एलॉय किससे बना होता है? निकल, आयरन और क्रोमियम से। जब आप स्कूल में जाओगे ना तो स्कूल में आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे बेटा, मीटर, ब्रिज, स्क्रू, ये सारे मतलब नए +2 के प्रैक्टिकल्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी प्रैक्टिकल्स आएंगे +2 के। तो ये वायर्स तब वहां यूज होती हैं। तो क्या होता है कि जब आपका प्रैक्टिकल होता है ना तो तब टीचर जो एक्सटर्नल आता है वो पूछ लेता है मैग्नीन की बेटा कंडक्टर से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है कि कम होती है, किस किस से ज्यादा होती है, नाइक्रोम की रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा अगर बच्चे ये याद रख लेना ये चीजें तो बहुत खुश होते हैं टीचर्स और बहुत अच्छे नंबर लगा के जाते हैं कि बच्चे को इतना पता है कि मैं इसका 48 × 10⁻⁸ यानी ये कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, यानी जो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम है उससे सर थोड़ी सी ज्यादा होती है इसकी रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस वैसे मैंगनीन की काफी कम होती है क्योंकि ये कॉपर, मैंगनीज, आयरन, निकल से बनी हुई है। इसको इसकी बेसिकली रेजिस्टेंस सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम से थोड़ी सी ज्यादा की हुई है ताकि हम परफॉर्म कर पाए एक्सपेरिमेंट्स। वायर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब महंगी भी ना रहे। आयरन भी बीच में डाल दिया, सस्ता पड़ता है आयरन, कॉपर थोड़ा महंगा पड़ता है, निकल थोड़ा महंगा है, मैंगनीज थोड़ा सस्ता है। तो ये मिक्स करके हमने मैग्निन अलॉय बना लिया। अलॉय जो है देखो इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट मेटल जैसी है और खर्चा भी नहीं है ज्यादा। मेटल महंगियां होती है ना, सिल्वर तो बहुत महंगी है, कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी, तो इसलिए बेटा थोड़ा सा ये क्या किया हुआ है, ये सस्ता बनाने का तरीका है और इससे रेजिस्टेंस भी ज्यादा नहीं बढ़ी। टंगस्टन से कम है रेजिस्टेंस इसकी, आयरन से थोड़ी सी ज्यादा है, प्लैटिनम तो बहुत अच्छा मेटल है, देखो कितना कम रेजिस्टेंस है, 11 × 10, बहुत ही महंगा मटेरियल है। और इधर देखो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई है, मतलब हंड्रेड्स में आ गई। और इंसुलेटर्स की देखो आप रेजिस्टेंस 10⁻⁵, 14, 15, 13, 11, 14, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है। इनमें तो मूवमेंट होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स का, बिल्कुल ही बंद है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया एटम टू एटम जाते हैं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है जाना। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। ये बेसिकली आपको रूम टेम्परेचर पे नहीं बताई हुई रेजिस्टेंस, ये काफी लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बताई हुई है। मतलब ये हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे बताई हुई रेजिस्टेंस, ठीक ठाक टेम्परेचर पे बताई हुई है। मतलब मैं देख के बताता हूँ आपको कितने टेम्परेचर पे बताई है ये रेजिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इन्होंने बताया ही नहीं है कितने टेम्परेचर पे बताई है। सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है ना उसकी रेंज पूछ लेते हैं कई बारी। तो ये देखो, ये अगर आप इस पे डॉट लगाओगे 2.3 × 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2.3 × 10⁻³ और ये 3.5 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻3 के बीच में लाई करती है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा तुम्हें
तुम्हारे प्रिय नीट में आया हुआ है ये सवाल के सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस की रेंज बताओ। देखो ये क्या सवाल आया हुआ है, तो बेटा ध्यान देना थोड़ा ये चीजें, ये मैं देखो कभी नहीं कहता तुम्हें याद कर लो, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, ये बेटा पूछ लेते हैं आपसे। ओके एवरीवन, तो अभी हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, मैं आपको दोबारा इनविटेशन सेंड करता हूँ।